औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम सेकेंडरी एजुकेशन है और ये हमारा बीएड का कोर्स है। कोर्स कोड नंबर 8624 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। और मैं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। वो क्या है जी? टू अंडरस्टैंड टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन retrospect at the many facts which have had a part in its development। यानी टीचर्स की डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हैं उसके फैक्ट्स को हमने उसकी डेवलपमेंट को देखना है इसमें। द फर्स्ट फैक्ट इज़ द वैल्यू विच आर अन फंडामेंटल टू बी मुस्लिम सोसाइटी। यानी कि सबसे पहले मुस्लिम है और हमने अपनी सोसाइटी को देखना है कैसे एजुकेट किस तरह करना है। फिर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द character and objectives of the education institution fluctuated and remained uncertain because the matter was the private concern and the state never became conscious of the uplift of its subject। Private education institution continued during the British period, यानी ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है मसले मसाइल रहे हैं। फिर इन पाकिस्तान टुडे it has been recommended that the teacher should as far as possible make use of modern methods in instruction। The prevailing teaching methods are more mechanical communication of theoretical books learning in which too much stress is laid on more memorization। आगे स्टूडेंट्स ठीक चलते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के लिखते हैं वो है जी explain the importance of teacher education। फिर describe the shift paradigms of teacher education in Pakistan। फिर identify the nature of training of secondary school teachers। फिर है जी describe the nature of BS education model। फिर है explain the progress for the training of secondary school teaching through distance education। फिर है get understand of the B.Ed 14 यानी कि +5 यानी 15 years model and B.Ed 12.3 यानी कि 15 years model। 7 के आइडेंटिफाई द नेचर प्रैक्टिस टीचिंग इन पाकिस्तान। फिर नंबर 8 पे आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। आगे स्टूडेंट जी चलते हैं बकाया आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले जी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। ये क्या है? बी academically well trained in the subject he teaches। फिर have high sound professional training in how to teach his subject। यानी कैसे टीचर ने सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस तरह से उसने ट्रेन करना है। फिर जी हाँ have had sound professional training in how to understand the children in his charge। चिल्ड्रन को कैसे एक टीचर ने अपने रंग में रंगना है, ये है। फिर हैव अ डीप सेंस ऑफ प्रोफेशनल ऑनर्स, कैसे प्रोफेशनली उसे डेवलप करना है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 हैज़ remarked the teacher as the private of the entire education system and has suggested strengthening the teacher education by orienting the massive number of teachers at all levels। यानी हर लेवल पे उनको कैसे ट्रेन करना है। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं। टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। In Pakistan, like many other countries, public institutions are the main source of developing teachers through pre-service and in-service program। यानी कि pre-service और in-service program जो है ये पाकिस्तान में institutions को की develop की जाती है। However, many students have raised the questions of the quality of delivering mechanisms of the institution while forwarding recommendation for improvement। and फिर है जी national professional standards the policy and plan wing Ministry of Education Government of Pakistan in Islamabad in 2009 framed the following standard for the teacher education। फिर है subject matter knowledge। फिर है जी human growth and development। फिर है knowledge of Islamic education value। फिर है social
लाइफ स्किल्स, फिर है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, फिर असेसमेंट, फिर लर्निंग इन्वायरमेंट, फिर है जी सेटिस्फेक्शन पे पैराडिजिज्म ऑफ टीचर एजुकेशन, फिर फ्रॉम ट्रांसमिशन टू कंस्ट्रक्टिव टीचर एज एक्टिव लर्निंग, फ्रॉम वन ऑफ ट्रेनिंग टू लॉन्ग टर्म सिस्टम ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी school teacher period, these institutions from the professional training teachers bear a direct relation between the education change and the role of the teacher, यानी इसमें educational change जो है और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द चेंज वो देखते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान। फिर है जी BS एजुकेशनल मॉडल, इसमें क्या है द प्रोग्राम बिगिन ऑफर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर, namely BS education, also known as concrete program where progressive teachers are admitted after passing higher secondary school certificate or intermediate। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं ये ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन को देखते हैं। वर्क वाइड यूज डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे अपने कोविड-19 में देखा डिस्टेंस एजुकेशन पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में फॉर टीचर ट्रेनिंग इज़ अ सिंगल एंड सक्सेसफुल टू cope with the problems of shortage of teachers। A large number of teachers are trained through the system, यानी कि ऑनलाइन जो है पढ़ाने का तरीका नहीं, ई लर्निंग का जो है, यानी कि टीचर कम है तो ऑनलाइन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में ट्रेनिंग की जाती है थ्रू इंटरनेट। फिर है जी प्रैक्टिस टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग अकर्स अ की पोजीशन इन द प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर इट इज़ क्लिमिनेटेड एक्सपीरियंस इन टीचर प्रिपरेशन, यानी टीचर की प्रिपरेशन का खासा ख्याल रखा जाता है। फिर है जी डिफिनेशन ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग नंबर ऑफ टर्म्स सच एज द प्रैक्टिस टीचिंग, स्टूडेंट्स टीचिंग, टीचिंग प्रैक्टिस, फील्ड स्टूडेंट्स, फिर है जी इन फील्ड एक्सपीरियंस, फिर स्कूल बेस्ड एक्सपीरियंस ऑन इंटर्नशिप आर यूज टू रेफर टू दिस, यानी कि इसमें इंटर्नशिप भी की जाती है इसके रेफर से। आगे क्या है जी इन सर्विस ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं INSET, इसमें क्या एकेडमिक डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 2002 डिस्क्राइब द इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर एज वो क्या जी जॉब रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस आर अवेलेबल टू एम्प्लॉयमेंट। फिर है जी दे इंक्लूड कंटेंट नॉलेज एंड क्वालिटी टीचर, कंटेंट नॉलेज और क्वालिटी टीचिंग इसमें होती है। फिर रिसर्च बेसिस होती है, फिर कोलेब्रेशन होती है, फिर डिलीवर्स लर्निंग नीड्स होती है, फिर स्टूडेंट लर्निंग एनवायरनमेंट और फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर जी आता है हमारे पास समरी इस चैप्टर की है द हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन पाकिस्तान स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्कनी, यानी जैसे ही मुल्क बना टीचर की ट्रेनिंग इस वक्त ही और एजुकेशन जो इसी वक्त ही पाकिस्तान में स्टार्ट होगी। फिर हाउएवर दिस एरिया हैज़ बीन फेस वेरियस चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ constant policy, inconsistent and in curriculum, lower resources, lack of quality teaching, lower quality of teaching process, lack of standards। Today a range of public and private institutions engage in preparation school teachers, यानी कि स्कूल के जब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैलेंज इसकी पॉलिसीज़ में इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी करिकुलम बनाने में प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज कम है पाकिस्तान में, क्वालिटी टीचर्स की सही नहीं है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोसेस सही नहीं है, स्टैंडर्ड सही से नहीं पढ़ाया जाता। फिर जो है रेंज प्राइवेट के में जो एक दो तरफा जो एजुकेशन है ये इससे भी बड़े मसले टीचर्स को दरपेश आता है। सम currently teachers education in Pakistan is passed through a transition as an innovation has been initiated by the government of Pakistan with the support of USAID through their pre-service teaching education program STMP pro, यानी कि जो USAID है इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है टीचर ट्रेनिंग को इनोवेट करने में पाकिस्तान में। फिर है जी इन सर्विस ट्रेनिंग देयरफॉर शुड नॉट रिगार्ड ओनली एज एन ऑब्लिगेटरी एक्टिविटी जस्ट मीट द रिक्वायर 35 आवर्स, यानी कि 35 घंटे जो पूरे करने होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के। तो फिर हमारे लिए हमारा चैप्टर नंबर 0 था, हमारा BEd का कोर्स नंबर 8624 था। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू वेरी मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें
जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।